everyone, I welcome you all to the study squad and it's time for the daily news analysis with us. Okay, before starting this, I would like to say that we have tried a new approach. Okay, here in this one. Okay, so tell us down in the comment section whether you like this new approach or whether you were liking the previous videos. Okay, we'll be waiting for that. Okay, with that, let's start the video. Okay, the first news is about your G7 and the humanitarian measure that they have decided to take for your Israel and Gaza. Okay, so the news is about Israel and Gaza, the attacks that are happening there or about the war that is taking place there. ठीक है, उसके बारे में है. Firstly, आपका question आ जाता है यहाँ पर, आप बताओगे हमें comments में the members of G7. ठीक है, I guess I'm gonna be asking you this till the time आपको एकदम by heart याद नहीं हो जाते हैं तब तक. ठीक है, so mention it down in the comment section. ठीक है, so देखो बेसिकली क्या हुआ है, जो आपकी G7 नेशंस हैं, द पावरफुल नेशंस, दे आर प्रेजेंटली फीलिंग द प्रेशर दैट दे हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर दिस वॉर. ठीक है, किसी ने स्टैंड लिया नहीं था और अब इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था दैट दे हैड टू टेक अ स्टैंड. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जो अटैक्स हुए हैं. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर पार्ट of this attack or they got hurt during these attack. ठीक है, majority में children हुए आपके. ठीक है, because of which you might have seen a lot of images also on these social media that are very horrific. ठीक है, और you must have seen कि the entire classroom has been wiped out. ठीक है, of the kids. ठीक है, क्योंकि a lot of them lost their lives. So now they had the pressure and they had to take a stand. So basically they did that during their 2-day meeting in Tokyo. Okay, so these people have decided to to call a pause for this war. Okay, and this they'll try to aid, release the hostages, जो भी hostages हैं, and they'll try to return peace through the border. ठीक है, border peace को वापस restore करने के लिए they'll work on that. ठीक है, all of them have decided it unanimously. ये आपके जो US सेक्रेटरी है ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ही said it that they have decided कि इस पे काफ़ी यूनिटी थी, unanimously डिसाइड किया है इस डिसीजन पे. They had also released a statement that Israel was right and to defend its citizen when it tried to attack them. ठीक है, जो हमास का अटैक आया था उसके अगेंस्ट जो इसराइल ने स्टेप लिया है, they are saying कि Israel did the right thing there. ठीक है, tell us what your feedback is on this one. ठीक है, what are your views about the statement and about Israel's action in the comment section. Okay, so this news is about them. Okay, moving forward comes the next news. The next news is about your Delhi pollution. ठीक है, Delhi में pollution काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, and the government is very very concerned about it. ठीक है, so अभी जो Delhi government ने step लेने का try किया है, that is for artificial rain. They are planning to use artificial rain to tackle this pollution problem. Okay, basically to curb this pollution. ठीक है, so जो आपके दिल्ली के जो environment minister है, ठीक है, his name is गोपाल राय. ठीक है, उन्होंने एक्सपर्ट IIT कानपुर के प्रोफेसर से they had talks and they decided कि they'll explore the possibility of your cloud seeding. ठीक है, तो अब देखो ये क्लाउड सीडिंग मेथड बेसिकली क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट. देखो इसमें क्या होता है, आपका एयरक्राफ्ट होगा. ठीक है, एयरक्राफ्ट विल बी लोडेड विद द केमिकल. ठीक है, फ्लाइड ओवर द क्लाउड्स. ठीक है, एंड दैट टाइम दे विल ड्रॉप द केमिकल ऑन दीज क्लाउड्स. ये केमिकल कौन सा है आपका, दिस इज सिल्वर आयोडाइड. ओके, सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करेंगे क्लाउड्स पे. बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, दिस सिल्वर आयोडाइड इज बेसिकली गोना मिमिक द पार्टिकल्स जो आपकी कंडेंसेशन में हेल्प करेंगे एंड ये क्लाउड उसी के अकॉर्डिंग ग्रो होगा. जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो साइज है वो इनफ हो जाएगा टू कॉज रेन, इट विल लीड टू रेन. तो ये हो गई आपकी आर्टिफिशियल रेन विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सीडिंग मेथड. ओके, ठीक है, सो दे आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर ऑन टू दिस. ओके, ऑल्सो देयर वर अ लॉट ऑफ टॉक्स ऑन स्टार्टिंग द ऑड इवन व्हीकल पॉलिसी जो थी, वो भी मे बी दे कुड स्टार्ट. ओके, सो देयर वर अ लॉट ऑफ टॉक्स गोइंग ऑन अबाउट दैट एज वेल. अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड टेक दीज मच स्टेप्स और दैट डिफरेंट स्टेप्स टू कर्ब दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन. हेयर यू कुड ऑल्सो सी अ वर्ड रिटन एज नॉक्शियस. नॉक्शियस इज इसका मीनिंग होता है हार्मफुल. ठीक है,
थोड़ी सी vocab कर ली हमने. Moving forward is your news about the Kerala government that has started a organic farming mission. ठीक है, इसको मैंने न्यूज़ में बेसिकली इसलिए रखा है ताकि यू नो hold on. So for your SSB, when you're writing your PPDTs, maybe you could include this also in your story somewhere. Okay, therefore I have placed it specially here. ठीक है, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस मिशन में क्या है. ठीक है, दे क्रिएटेड दिस मिशन फॉर द अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन द स्टेट. ठीक है, क्लाइमेट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए. ठीक है, इसके लिए ये प्रमोट करना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, और इनका एम क्या है? their aim is to expand this to 5,000 hectares by the end of 5 years. ठीक है, और हर साल हजार हेक्टेयर्स कवर करने का. ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नेम पी प्रसाद. ठीक है, ही हैज अनाउंस्ड दिस. ठीक है, और इसमें देखो एक और चीज़ है, इन द फार्म्स दैट आर रन बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. ठीक है, उन फार्म्स में एटलीस्ट 10% एरिया वुड बी सेट असाइड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग है ऑल्सो, जो सिलेक्टेड बेनिफिशरीज है या जो सिलेक्टेड फार्म्स है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको एटलीस्ट 5 years तक ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करके रखनी है. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि जो ये इनका जो मिशन है इसमें ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स भी इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड इज योर नेक्स्ट न्यूज अबाउट ब्राजील. ठीक है, अब देखो इंडिया के बाद में G20 की प्रेसिडेंसी गई है ब्राजील के पास. ठीक है, ब्राजील एंड इंडिया शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड. ठीक है, तो ब्राजील ने बेसिकली क्या कहा है यहाँ पर कि जो इंडिया ने जो स्टार्ट किया था, ठीक है, जो इंडिया का जो भी व्यूज़ थे या जो टॉपिक्स उन्होंने स्टार्ट किए थे अपनी G20 में, दे आर सेइंग कि हम उन्हें कंटिन्यू करके रखेंगे आगे तक. प्लस दे विल ऐड ऑन. ठीक है, इंडिया के पॉइंट्स तो ऐड करे रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, प्लस दे विल ऐड देयर पॉइंट्स. ठीक है, दे विल ऐड देयर पॉइंट्स इनटू इट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड हियर. ठीक है, बेसिक. ठीक है, तो देखो दे आर होपिंग टू कंटिन्यू व्हाट न्यू दिल्ली स्टार्टेड. ठीक है, देन ब्राजील के प्रेसिडेंट, हिज नेम इज लुइस इनाशियो. ठीक है, इनका नेम भी याद रखना आप. ठीक है, हिज होप्स आर ये फॉरवर्ड लेके जाएंगे देखो ग्लोबल साउथ को और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको. ठीक है, ऑल्सो दे विल इंश्योर द द इंटरेस्ट इन द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल साउथ, उनको पार्ट उन पे टॉक्स कंडक्ट करें. ठीक है, उस पर. ठीक है, और ऑल्सो देखो इसके अलावा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील और इंडिया एक तो देखो G20 में पार्ट है एक साथ, मेंबर्स है एक साथ. ठीक है, नेक्स्ट कम योर ब्रिक्स जिसके लोग पार्ट हैं, नेक्स्ट कम्स योर इप्सा जिसमें ये लोग पार्ट हैं, और नेक्स्ट कम योर G4. ठीक है, तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ. ठीक है, एक साथ मेंबर्स हैं. ठीक है, ब्रिक्स में आपके कौन से हैं बाकी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इप्सा में है आपका इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका. G4 ग्रुपिंग में आ गया आपका ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान. ठीक है, ये सब है. ठीक है, और देखो ब्राज़ील के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, ब्राज़ील प्रेजेंटली क्या होस्ट कर रहा है आपका इप्सा. ठीक है, होस्ट करेगा G20 2024 में नेक्स्ट ईयर. ठीक है, COP 30 क्लाइमेट चेंज समिट ये होस्ट करने वाला है 2025 में. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंड देयर वर ऑल्सो टॉक्स दैट इजराइल और गाजा का जो पूरा टॉपिक है दैट कुड एक्चुअली ओवरशैडो सम ऑफ द टॉपिक्स जो some of the topics or whatever they were planning to continue. Okay, next news is about your European Union and Ukraine. इसकी न्यूज़ आई है. यूरोपियन यूनियन में बेसिकली मेंबरशिप के लिए किसने अप्लाई करा है अभी? यूक्रेन ने. ठीक है, आपके यूरोपियन यूनियन के अंदर. ठीक है, एंड सेकंड इज योर मोल्डोवा. ठीक है, इन लोगों ने अप्लाई किया है फॉर मेंबरशिप, तो उसके बारे में बात हुई है. ठीक है, सो आपको पहले तो यहाँ पर यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, ठीक है, अर्सला, उसका नेम याद रखना आप, इनका नेम. ठीक है, एंड देन देखो इसके बारे में देखो, यू कैन नॉट जस्ट गो वन डे एंड बी ज्वाइनिंग यूरोपियन यूनियन. इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है ये. ठीक है, सो दे हैव देयर ओन दे ऑल्सो हैव देयर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट द कंट्री हैज़ टू फॉलो एंड कंप्लीट चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे तभी तो वो मेंबरशिप ग्रांट करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड 7 डिमेंशंस टू यूक्रेन जो उन्हें चेंज करनी है या उन पे वर्क करना है. ठीक है, इसमें से कौन सी आ गई? टैकलिंग द ओलिगार्क पावर, फाइटिंग करप्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूरोपियन यूनियन के लिए है इज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज. ठीक है, इन सब पे ने वर्क करना है. व्हाट इज ओलिगार्क हेयर? ठीक है, इट्स बेसिकली व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल they have a control over the government or the organization. ठीक है,
तो उसके ऊपर वर्क करना है इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो यूक्रेन का इसमें क्या था कि यूक्रेन साइड कि हम 90% ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट, एंड हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके वर्ड्स, ठीक है। ऑल्सो द अदर न्यूज हेयर वाज दैट यूरोपियन यूनियन ऑल्सो ग्रांटेड जॉर्जिया द कैंडिडेट स्टेटस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यूरोपियन यूनियन ऑल्सो सेड दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रांट द मेंबरशिप, लाइक टर्की की मेंबरशिप की जो टॉक्स हैं दे हैव बीन गोइंग ओवर फॉर 18 years, ओके। सो दिस इज ऑल, ओके। नेक्स्ट थिंग, देखो मोल्डोवा को आप यहाँ पे मैप पर देख सकते हो, हेयर इज यूक्रेन एंड द शेडेड पोर्शन इज मोल्डोवा हेयर, ओके। So with that we'll end this session. I hope you liked this video, and definitely tell us in the comment section whether you like this approach or you were liking the previous one, okay. Thank you for watching, and hit the like button if you liked the video.